Hello students, I hope you all are safe and fine at your places. So what we were doing chapter number 13. So we have finished with this chapter. Chapter number 13, I have explained you, even I have sent you the question answers as well. It is there on the Google Classroom. I have already uploaded. So now what we will do is we will start chapter number 17. Yes. The question is why we are not doing chapter number 14, 15 and 16. So students, let me tell you, we have cut down these chapters from the syllabus. These chapters are now not in your syllabus, chapter number 14, 15 and 16. So that is why we are going to start with chapter number 17. So chapter number 17 is your transport. And let me tell you one more thing. Question answers are being shared with you on Google Classroom of chapter number 13, natural disaster. Bookwork I will share with you today so that you can do it in your book as well, and question answers you can write it in your notebook. So that you are having like 3 days in between, you can complete it, you can do it. So chapter number 17, transport. So in this, first of all we will learn about the history of transport, कि हमारी transport की history क्या है, transport हमारी शुरू कहाँ से हुई थी and where it is today. So today we will do this much only कि हमारी transport कहाँ से शुरू हुई थी और आज कहाँ पे है. So for that you have to be with me on my screen so that I can tell you about history of transport. So students, be with me on my screen. So students, as you can see on the screen, presentation of transport, this is your chapter number 17. The name is transport. So in this chapter we will study about different modes of transportation. Transportation के different modes के बारे में पढ़ेंगे, प्लस उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट जो था कहाँ से शुरू हुआ था एंड कहाँ तक आज वो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जो है चला हुआ है. सो द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट कि कहाँ से ट्रांसपोर्ट जो है शुरू हुई थी. So this is I'm going to present you the slide. So this is timeline of transport. Timeline of transport मतलब ट्रांसपोर्ट कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक वो आज है. So that is 3500 BC. First of all, BC means before Christ. बिफोर क्राइस्ट कहते हैं क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट आप जानते हो, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले. सो दैट इज 3500 BC, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से भी 3500 बिफोर क्राइस्ट, उससे भी 3500 ईयर्स मतलब पहले. सो दैट इज 3500 BC. सो आज के टाइम पे हम जो है टाइम को कैलकुलेट करते हैं ईयर्स में, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर. बट तब क्या था, तब इस तरह से टाइम की कैलकुलेशन नहीं होती थी. उस वक्त क्या होता था, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले इस तरह से टाइम का कैलकुलेशन किया जाता था. सो कहाँ से शुरू हुआ था, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि ट्रांसपोर्ट शुरू कहाँ से हुआ था. एज यू कैन सी कि ट्रांसपोर्ट कहाँ से शुरू हुआ था. इट वॉज फ्रॉम द व्हील्स. व्हील्स से भी पहले आई वॉन्ट टू टेल यू, जब हमारे पास व्हील्स भी नहीं थे, व्हील्स के इन्वेंशन से भी लोग कैसे काम करते थे, लोग पैदल चल के जाते होते थे. सो what they used to do, they used to move from one place to another by their using their foot. So अपने foot का use करके they used to move from one place to another. They were not having any facility. So after the invention of wheel की invention के बाद क्या हुआ, दे स्टार्टेड यूजिंग द व्हील से उन्होंने क्या बनाना शुरू किया, उन्होंने बुलक कार्ट्स बनाने शुरू किए, घोड़ा गाड़ी जिसको आप कहते हो, कि जानवरों के साथ जो थे, एनिमल्स के साथ अपनी वो व्हील्स का बांध के, एंड दे स्टार्टेड यूजिंग द व्हील्स. उसके बाद ट्रैवल करने के लिए दे स्टार्टेड हॉर्सेस. उन्होंने हॉर्सेस के थ्रू ट्रैवल करना शुरू किया. देन हॉट एयर बेलून्स आए. हॉट एयर बेलून्स में लोग ट्रैवल करते थे. आपके स्कूल में भी एक बार यू गॉट द एडवेंचर कैंप, उसमें आपने भी ट्रैवल किया था हॉट एयर बेलून में. सो दे यूज टू ट्रेवल इन हॉट एयर बेलून. उसके बाद हॉट एयर बेलून के बाद आपकी स्टीम इंजन्स आए. स्टीम इंजन्स की हेल्प से जो थे
शिप्स चलती थी। सो उसके बाद क्या थे, स्टीम लोकोमोटिव आए। स्टीम लोकोमोटिव मतलब स्टीम से चलने वाली ट्रेन्स आई। और बीच में बाइसिकल्स आए। बाइसिकल्स के बाद पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ आई, जो सबसे पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ में आई, जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग जो थे उसमें ट्रैवल करते थे। एंड आफ्टर दैट एज यू कैन सी कि मोटर बाइक्स आई। मोटर बाइक्स के बाद चॉपर आए। चॉपर के बाद एरोप्लेन्स, रॉकेट। सो जैसे जैसे जो था टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे टाइम आगे आता गया, वैसे वैसे डिफरेंट इन्वेंशंस होती गई। तो फर्स्ट इन्वेंशन वाज, लोग सबसे पहले क्या थे, अपने पैरों का यूज़ करते थे टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड आफ्टर दैट अ बिग इन्वेंशन वाज स्टीम इंजन। जो सबसे एक मेन इन्वेंशन था दैट वाज स्टीम इंजन। और स्टीम इंजन का इन्वेंशन किसने किया, दैट वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट। सो जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया। जिस स्टीम इंजन के थ्रू आपकी ट्रेन्स चलती थी उस वक्त, आपकी स्टीम जो थी बोट्स चलती थी, जिसकी हेल्प से लोग ट्रेवल करते थे। सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। द इन्वेंशन ऑफ व्हील। सो दे आर टेलिंग यू अबाउट इन्वेंशन ऑफ व्हील, कि व्हील की इन्वेंशन कब हुई थी। एज आई टोल्ड यू फर्स्ट स्लाइड में कि व्हील की इन्वेंशन कब हुई थी, 3500 BC, मीन्स बिफोर क्राइस्ट। इट वॉज अ मेजर माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या था, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था ह्यूमन हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री की डेवलपमेंट में। बिकॉज उससे पहले लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अपने गुड्स को ले जाने के लिए, मतलब अपने सामान को कैरी करने के लिए। सो दैट वॉज द मेजर इन्वेंशन, एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी। The wheel can be used for many purposes like making toys, vehicles, clocks. So as you know that wheel की help से toys भी बनते हैं, and vehicles so you already know because vehicles so you are traveling through it, and clocks as you can see in this picture how that time vehicles were your wheels were used as a clock. So as you can see this wheel is moving around through this gear. So इस गियर की हेल्प से ये व्हील मूव करता था एंड इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द टाइम। बेसिकली हाउ इट कैलकुलेट्स द टाइम, एज यू नो कि इससे एक एक यू कैन से कि सेकंड का इससे एक एक पता चलता था जब ये व्हील जो है इस गियर की हेल्प से मूव करता था। जब एक गियर एक इस तरफ जाता था देन इट मूव इन द राइट डायरेक्शन, देन इट मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन। सो इस तरह से लोग जो थे टाइम को कैलकुलेट करते थे, बिकॉज उस टाइम पे कोई वॉच नहीं होती थी। सो लोग इस तरह से व्हील्स को यूज़ करके टाइम को कैलकुलेट करते थे। सो द व्हील इज़ द बेस फॉर मोस्ट ऑफ द इन्वेंशन मेड बाय द ह्यूमन। सो क्या था, व्हील उस वक्त ह्यूमन के द्वारा ह्यूमन बींग्स के थ्रू की गई एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी और एक बहुत बड़ी इन्वेंशंस का बेस था, क्योंकि उसी व्हील की हेल्प से बहुत बड़े बड़े लोगों ने आगे इन्वेंशंस किए। आफ्टर दैट ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड, after the wheel was invented, people started using carts to transport goods and chariots or bullocks carts to travel. So व्हील की इन्वेंशन के बाद लोगों ने क्या किया, अपना सामान जो था अपने बुलक्स की हेल्प से, मतलब कि अपने गाय बैल की हेल्प से, चैरियट्स जो गाय, आप एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि गाय बैल की हेल्प से जो पीछे बैठने का एक दो व्हील्स लगा के एक अरेंजमेंट करते हैं, तो इसको चैरियट्स बोलते थे। सो चैरियट्स की हेल्प से क्या था, इन्होंने अपने गुड्स ले जाने शुरू किए, बिकॉज देयर इज़ अ प्लेस इन इट। इसमें प्लेस होता था कि लोग अपना सामान भी रख सकते थे और लोग खुद भी उसके अंदर ट्रैवल कर सकते थे। सो दैट इज़ व्हील की इन्वेंशन के बाद लोगों के पास एक ये भी ऑप्शन आया कि हाउ दे कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस एंड हाउ दे कैन कैरी देयर गुड्स एज वेल। वो अपना सामान कैसे साथ में लेके जा सकते हैं। बोट्स विद ओर्स वर ऑल्सो इन्वेंटेड टू ट्रैवल इन वाटर बॉडीज। सो बोट्स के साथ ओर्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा, एक बोट्स के साथ एक वो लंबे लंबे चप्पू से आते हैं जो पानी के अंदर हम चलाते हैं, फ्लैट, जिसका जो नीचे वाला हिस्सा जो होता है फ्लैट होता है। सो उसको ओर्स बोलते हैं।
आप कई जगह पे बोटिंग साइट्स पे गए होगे जहाँ पे आपने बोटिंग की होगी। सो आप देखते हो कि वो बोट्स को चलाने के लिए वो चप्पू चलाते हैं पानी के अंदर, जिससे कि क्या बोट आगे को मूव करती है। सो बोट्स विद ओर्स वर ऑल्सो इन्वेंटेड टू ट्रेवल इन वाटर बॉडीज। पानी के अंदर मूव करने के लिए उस वक्त बोट्स के साथ ओर्स का जो इन्वेंशन हुआ। Horses were also popular. They later become very common during the medieval period. लोग horses के थ्रू जाने लगे, horses के ऊपर अपना सामान बांध के उसके ऊपर ट्रैवल करते थे, so that they can carry their goods as well and they can travel as well with this. And उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग द सेमी मॉडर्न पीरियड, उस ड्यूरिंग क्या हुआ, आपके हॉट एयर बलून्स आए। सो हॉट एयर बलून वॉज इन्वेंटेड इन 1783। सो इट वॉज द फर्स्ट मशीन टू ट्रेवल थ्रू एयर। एयर में ट्रेवल करने के लिए दिस वॉज द फर्स्ट मशीन। सो एज आप इसी से देख सकते हो कि कितना पुराना हॉट एयर बलून का जो है सिस्टम है। So the steamboat, which was invented in 1789, was a milestone in the evolution of transportation. Steamboat क्या होता है? Steamboat आपकी कोयले की हेल्प से, उसके बोट के जो नीचे व्हील लगे होते हैं, बोट के नीचे व्हील होते हैं जो पानी में आपके जब कोयला जो है उसको जलाया जाता है, उसकी हेल्प से वो व्हील घूमता है एंड इट मूव्स इन द वाटर, उसमें मूव करता है। सो मैनी स्टीम लोकोमोटिव्स वर मेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। स्टीम लोकोमोटिव मतलब स्टीम से चलने वाली ट्रेन्स। आजकल आपकी जो ट्रेन है वो डीजल पे चलती हैं, बट उस टाइम क्या था, उस टाइम पे ट्रेन्स जो थी कोयले से चलती थी। कोयला उसके अंदर डालते थे, वो चलाते थे, उसकी हेल्प से उसके नीचे जो व्हील्स लगे होते थे वो मूव करते थे एंड द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, और वो जर्नी चलती थी। सो सेम एज बोट्स चलती थी एंड सेम एज ट्रेन्स चलती थी। बोट्स पानी में चलती थी स्टीम की हेल्प से, एंड आपके जो लोकोमोटिव मतलब यू कैन से कि ट्रेन्स जो थी आपकी स्टीम की ही हेल्प से ट्रैक पे चलती थी। सो the first car was made in 1862. They become popular rapidly in the western countries. So first car जो थी that was made in 1862 and that too was like rapidly in western countries. As I told you कि सबसे पहले western countries में इसका trend शुरू हुआ. This was followed by the invention of motorcycle. मोटरसाइकिल का इन्वेंशन हुआ 1867 में. सो द मॉडर्न साइकिल वॉज इन्वेंटेड इन 1790. 1790 में साइकिल का इन्वेंशन भी हुआ. द स्टीम बोट, एज यू कैन सी, इस पिक्चर में आपको बिल्कुल क्लियर दिखाया है. इस पिक्चर में इट इज़ वेरी क्लियर. एज यू कैन सी दिस व्हील, ये वाला जो स्लॉट है यहाँ पे कोयला डलता है. इस कोयले की हेल्प से स्टीम बनती है एंड स्टीम की हेल्प से पुली के साथ, एक पुली लगी होती है, एक पुली के साथ ये जो है व्हील मूव करता है. सो द स्टीम बोट वॉज इन्वेंटेड इन 1787. It started the industrial revolution as the steam engine spread widely as become popular. In the steam engine, smoke which pushes a wheel about it is released. It is written there कि steam engine कैसे चलता था. कोयले के जलने से स्मोक थी एंड वो स्मोक जो थी वो व्हील को रोटेट करने में हेल्प करती थी. सो दिस व्हील इज़ कनेक्टेड टू अंडर वाटर व्हील्स. अंडर वाटर व्हील्स जो था इससे कनेक्टेड था, जो उसको रोटेट करता था. स्टीम बोट्स फॉर मेनली यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स. जो स्टीम बोट्स हैं आपकी वो मेनली जो है आपकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होती थी, मतलब गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सामान कैरी करने के लिए बेसिकली यूज़ होती थी. ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग द मॉडर्न एज. मॉडर्न एज मीन्स जब जो था मॉडर्न टाइम आया तो सबसे पहला जो एयरप्लेन था, द वाइट ब्रदर्स इन्वेंटेड एंड फ्लू द फर्स्ट एयरप्लेन इन 1903. सो आपके चैप्टर में भी है आगे जाके कि हु इन्वेंटेड द फर्स्ट एयरप्लेन. सो द वाइट ब्रदर्स इन्वेंटेड द फर्स्ट एयरप्लेन एंड द टाइम वॉज ऑल्सो गिवन इन इट. इसके अंदर टाइम भी दिया हुआ था कि ये कितने टाइम के लिए जो था आपका एयर में रहा.
सो इट वॉज देयर इन फॉर अराउंड 12 सेकेंड्स। 12 सेकेंड्स के लिए ये जो था एयर में रहा था, एंड इट लाइक कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 230 मीटर। सो जो आपका फर्स्ट एयरप्लेन था that was made by Wright brother, it was there in the air for 12 seconds and it covered the distance of 230 meters। and आज हमारे जो एयरप्लेन्स हैं इतने बड़े बड़े, वो कितना लॉन्ग डिस्टेंस जो है कवर करते हैं। The helicopter was invented in 1940। Although it is slower than airplanes, it has the advantage of better control। The first manned space mission to moon, Apollo 11, landed on moon on July 20, 1969। After this, many space shuttles were sent in space। So उसके बाद जो फर्स्ट आपका जो मून में भेजा गया था तो उसका नाम था अपोलो 11, और उसके बाद आपके बहुत सारे स्पेस शटल्स जो थे स्पेस में भेजे गए। सो उसके बाद आज टुडे यू कैन सी कि कितनी कार्स आ गई हैं आज, कितनी कितने डिफरेंट तरह की कार्स हैं। यू आर हैविंग ग्रेट लाइक वेराइटी ऑफ कार्स। सो cars are the most popular mean of transport in the world। The greatest advancement in car were made by Henry Ford। The cars are powered by liquid fuel, either gasoline or diesel। Cars are also very popular in motorsports like F1 and F2। So as you know, there are variety of cars, I told you। So students, टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया है कि कैसी जो थी हमारी हिस्ट्री थी ट्रांसपोर्ट की। सो अभी तक हमने ये पढ़ा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कि कौन कौन से हैं। लाइक आपका लैंड ट्रांसपोर्ट है, रेलवेज़ है, वाटरवेज़ है। सो हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सो we will meet next week with the new topic in the same chapter, and we will meet next week। Bye students।